ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨਾ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ। ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਮ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋੜ ਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ,
ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ, ਨਾ ਆਸਤਿਕ ਦੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਤੁਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇਕ ਨਾਮ ਵੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੜੈ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੜੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਰੋਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਰੋਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਬੜਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼
ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਚਰਨ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਏ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜੱਗ ਕੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਬੋਝ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਜਿੰਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਘੜੀ ਪਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मोहे मरने का चाव है कबीर, मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है, परा हमारे वार। सो ये सारी बख्शिश गुरु तो होएगी। सो आओ गुरु पातशाह जी मेहर करन, लड़ीवर शब्द की विचार के नाल जुड़ते हाँ। महाराज जी की सानू ज्ञान देंदे ने, बड़ा प्यारा ज्ञान शब्द विच सानू मिलेगा। बड़े प्रेम दे नाल एकाग्रता दे नाल सरवण करना, एकाग्रता दे नाल जदों असीं सरवण करदे हैं ना, इंटरस्ट बनदा है ते फिर दिल करदा भी असीं सुनी जाइए, बोली जाइए। जे मेरा इंटरस्ट नहीं तो मेरी अगे गल तुरेगी नहीं, विचार वधेगी नहीं, मैनू जे दिलचस्पी नहीं, जे मैनू रस आ रहा तो तुहानू रस आएगा। मेरी जो गुरु महाराज की बख्शिश दे नाल मुख तो निकली विचार है, ਇਹਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਨ ਤੇ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ बहुत जरूरी है, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ये भी सेवा ही है जो असी कर रहे हैं, बैठ के ते सुन के या सुना के भी सेवा ही है। सो गुरु महाराज जी मेहर करन। अज दा श्लोक जिहड़ा आरंभ होया सच्चे पातशाह दी मेहर सदका मेहर कीती है। सच्चे पातशाह ने श्लोक की आरंभता हुई है। 16वां श्लोक है, रूप न रेख न रंग किश, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए, नानका जिस होवे सो प्रसन्न। श्लोक के बाद अष्टपदी है, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
परमात्मा के बारे लिखे है, परमात्मा के स्वरूप बारे लिखे है। दुनिया दे विच जिन्ने लोग ने सब दा परमात्मा, दुनिया विच बहुत धर्म होणगे, सब दा अलग अलग परमात्मा, किसी का किस तरह का, किसी का किसी तरह का, किसी ने कोई कल्पना के रूप में बनाया, किसी ने कोई कल्पना के रूप में बनाया, किसी ने पत्थर के रूप में उसनों बनाया, किसी ने उसनों चित्र के रूप में बनाया, किसी ने मूर्ति के रूप में बनाया, किसी ने कोई फोटो के रूप में बनाया, किसी ने शब्द के रूप में बनाया, किसी ने ग्रंथ के रूप में बनाया। मतलब परमात्मा नूं दुनिया मनदी है, मनना चाहिए। इत्थे ये क्लीयर कर लगे ने गुरु अर्जन देव महाराज जी, जिस परमात्मा नूं दुनिया मनदी है वो किहो जिहा? तुहानूं कोई पुछ लवे, मैनू कोई पुछ लवे तेरा परमात्मा किवें दा, मैनू कोई पुछ लवे भी भाई साहब रोज़ बड़ी कथा कीर्तन करदे हो, तुसीं दसो तुहाडा परमात्मा किवें दा? बड़ा वधिया उहदा सवाल है। कोई मैनू पुछ सकदा है तुसीं जिस परमात्मा की गल करदे हो तुसीं उस परमात्मा नूं वेखिआ? जे मैं कहां नहीं देखिआ, वो कह सकदा तुसीं गल क्यों करदे हो, तुहानूं नहीं करनी चाहिए, ओहदी गल वाजिब है, वो सही है। जिस चीज़ का मैनू इलम नहीं, जिस बारे मैनू पता नहीं, जिस बारे मैं खोज नहीं की, मैनू कहने का हक भी नहीं, तो सामने वाला बंदा मैनू टोक सकता है, उन्होंने टोकण का हक है, उन्होंने पुछण का हक है, क्योंकि इन्नी वड्डी गल, इन्नी वड्डी चीज़ पेश की जाए तो उहदे बारे पता होना जरूरी है, उहदी विचार होनी जरूरी है, उहदा जवाब होना जरूरी है। परमात्मा सब दा, किसी नूं पूछा जाए तेरा परमात्मा कैसा है, वो आखेगा मेरा परमात्मा ऐसा है। जे उन्होंने पूछा जाए वह स्वरूप किवें दा होएगा, वो भी दस देगा मेरे मुताबिक मेरे परमात्मा का रूप इस तरह होएगा। मैनू कोई पूछे भी तेरा रब किदां दा होएगा, मैं आखांगा मेरा रब बहुत सोहना होएगा, सोहनी दस्तार बंदा होएगा, मैं आखांगा क्योंकि मैं सिख हाँ, मैं आखांगा मेरा रब सोहनी दस्तार बंदा होएगा, सोहना दाड़ा होएगा, सोहना स्वरूप होएगा, सोहने कपड़े, सोहना चोला, इस तरह का रूप होएगा। हो सकता वो अमृतधारी भी होवे, ये मेरी गल है, दूसरे दी नहीं, दूसरे धर्म वाले दी नहीं, मैं कहांगा। हुण दूसरे नूं पुछ लिया जाए, किसी हिंदू वीर नूं पुछ लिया जाए तू अपने परमात्मा के स्वरूप बारे दस, वो भी दस देगा। हो सकता है वो दसे मेरे परमात्मा का मुकुट है, ਉਹਦੇ तिलक लग है, हो सकता है वो कवे ਉਹਦੇ ਧੋਤੀ भी बनी हुई है, हो सकता है वो कवे ਉਹਦੇ ਬੋਦੀ भी है, वो ये भी कह सकता उसने जनेऊ पाया, वो कह सकता, उन्होंने भी कहने का हक है। होर किसी ने पूछा जाए, किसी होर धर्म दे नूं पूछा जाए, वो भी दस सकता बहुत धर्म ने। सो विचार असी गुरबाणी दी कर रहे हैं तो उधर ही जाना प्रमाण लैके। हर एक धर्म बंदा अपने रब दे रूप स्वरूप बारे सानू दस दवेगा, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इत्थे उत्तर भी दे दिता, नाल सवाल भी आरंभ कर दिता भी रूप नारेक न रंग किश, त्रै गुण दे प्रभ भिन्न तिसे बुझाए, नानका जिस होवे सो प्रसन्न। परमात्मा गर्भ दे विच नहीं हुंदा, जिहड़ा गर्भ दे विच जमदा है वो मरदा है, जिहड़ा पेट दे विचों निकल के बाहर आउंदा है उहदी मौत हुंदी है, जिहड़ा पेट विच नहीं जांदा उहदी मौत जमना ते मरना नहीं हुंदा। उहनूं कोई पैदा नहीं करदा, उसनूं कहंदे सैभंग, सैभंग कहंदे ने, उन्होंने कोई पैदा नहीं करता। किसी के घर बच्चा होवे उहदे नैन नक्श मिलते ने मां बाप के चाचे तायां ते दादकियां ते नानकियां ते, इहदा चेहरा उहदे वर्गा हू बहू भी मिल जाते हैं, कई बार चेहरे ध्यान देना हू बहू भी चेहरे मिल जाते हैं। असी कह दिंदे आ भी इहदा चेहरा मुहांदरा अपने बाप ते अपने प्यो ते फलाने का मुंडा ते नहीं तू,
फलाने की धी तो नहीं तू, वैसे अंदाजा ला लें, कई बार सच भी निकलता। हुण उस परमात्मा की गल कर रहे हैं जिहदा रूप नहीं है, क्योंकि वह जमया नहीं, उसनूं किसी ने पैदा नहीं किया, ਉਹਦੀ शक्ल नहीं है। चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख भेखो कह न सकत कह। ਉਹਦਾ रूप नहीं है, ਉਹਦਾ रूप नहीं, फिर ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ रंग दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਕਣਕਵੰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ रंग भी नहीं, गुरु अर्जन देव पातशाह जी फरमान करते हैं उसका रूप भी नहीं है, ਉਹਦਾ रंग भी नहीं है, तो फिर वो किसी तरह का किस तरह का दिसदा। हाँ, एक साडी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच एक पंक्ति है, वो पंक्ति का अर्थ असीं इहदे नाल भी जोड़ सकते हैं, भी होर भी ਉਹਦਾ बड़ा अर्थ बनता। सोहणे नक जिन लंबड़े वाला भी लिखिया, सोहणे नक जिन लंबड़े वाला भी लम्बे वाला वाला, चलो ये भी मान लें। पर एक और पंक्ति भी नाल लग जाती, सहस तव नैन नन नैन है तो एक सहस मूर्त नन एक दो, सहस पद विमल नन एक पद गंध मैंने सह तव गंध चलत मोहि समय जो जो दस होए, तेदा चन्न समय चन्न होए। परमात्मा का रूप नहीं, मेरी जात है, तुहाडी भी जात का ठप्पा लाया होएगा समाज ने, एक दूजे नूं नीवां ते उच्चा दिखाउण दे लई ठप्पा लग्या होएगा। असीं लिखते हैं गुस्ताखी माफ बड़े शान दे नाल, अपनी गोद नूं लिखते हैं, अपने गोद नूं लिखते हैं नाम दे बाद पहला नाम सिद्धा राजन सहोता बिक्की अरोड़ा, अगे जिहड़े शब्द ने वो खत्म कर दिते, सिंह लफ्ज जां होर कुमार जां राम लगदा सी ना रब दा नाम, उन्होंने झाड़ दिते। जिहड़ा हरजिंदर सिंह सी ना प्रदेश विच हैरी बन गया, ध्यान देना, उन्हें हैरी लिखिया, हैरी इंडस्ट्रीज, सिंह सुंघ गए, सिंह खत्म कर दिते। सिंह की की जरूरत है, ये तो गुरु गोबिंद सिंह नूं पता होवे जिन्हें सिंह पैदा किए ने। वैसे वैसे गल चले ना, असीं सिंह हुंदे हैं ते हैरी जैरी ये की हुंदे ने बई, किहदे नाम हुंदे ने? गुस्ताखी माफ। शर्म आउंदी है, शर्म आउंदी है, सीधे नाम लिखदे ने कार्डां दे, कार्डां दे नाम लिखदे ने। तू लिख रजिंदर सिंह लिख, बखतावर सिंह लिख, तू लिखते जोरावर सिंह लिख, कितना सोहना लगता। जे हुण किसी का नाम जोरावर सिंह है तो कट के जैरी जैरी लिख दे तो गुरु गोबिंद सिंह बहुत खुश होणगे, कहणगे भी बड़ा लाडला मेरा सिख है, इहदे ते करो कृपा। इन्हें बहुत मुल पाया साडी करनी दा, शहादतां दे दित्तियां सिंह बनाउण दे लई, सिंह नूं बचाउण दे लई, ते सिंह लफ्ज ही उड़ा के रख दिता। उन्हां लोगां नूं संग ते शर्म आउणी चाहीदी है जो सिंह जां कौर दे नां तों भजदे ने। बहुतियां नूं गुस्सा लगेगा, पर गल मेरी विच वजन है, एवें नहीं मैं बोलदा। क्यों बई, क्यों गल चली है शब्द दी, रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण ते प्रपिन। सानू अपने नाम दे नाल बहुत सत्कार दे नाल नाम, चलो नाम दी गल चली, मैं इत्ते भी थोड़ा बोलना चाहुंदा। घरां दे विच बच्चियां दे नाम रखी जांदे ने, टीटू मीटू छीटू, ये कोई नाम है? गुस्ताखी माफ। मैं ऐसे पेरेंट्स देखे ने, उन्होंने पूछा तेरे बच्चे का नाम की है, वो कहता मैनूं वड्डे नाम का नहीं पता। वाह जी वाह, प्यो मां नूं भी नहीं। मैं पूछया की है, वो कहते असीं ते आई कही दे, उन्होंने असली नाम का ही नहीं पता भी मैं इहदा नाम की रखिया सी, वो ही रह गए ने टीटू मीटू छीटू। ये कोई नाम? अपने बच्चे नूं तू मैं जिदा पहला बेनती की, और खुशहाल सिंह जी इधर आओ, ओ देखो जो इदा तुसी बोलोगे ना, उन्हों लगेगा भी मैं देखो किड्डा वड्डा, मैनूं सतगुरु ने किड्डा वड्डा नाम बख्शिया, वो फलाना सिंह इधर आ, इदा दा नाम रजिंदर कौरे इधर आ। ते जे होर ही कोई निके निके अही नाम रख देते तो चंगी गल नहीं, इको ही नाम होना चाहिए। गुस्ताखी माफ, प्रेम दे नाल चलो ठीक है, असीं कहने आ,
पर क्योंकि वो नाम पक जाता है, असली नाम जिहड़ा ना रिश्तेदारां नूं याद रहिंदा है। तुसीं देख लेना तुहाडे जिन्ने रिश्तेदार ने जिहदे छोटे नाम ने, तुहानूं वड्डे नामां दा किसी नूं पता नहीं होएगा असल दे विच ओहदा पूरा नाम की है, वही याद रह गया। असली नाम जिहड़ा सी ਸਿੰਘ कौर ਉਹ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ रूप ना रेख ना रंग किश, पहचान नाम तो है। जे नाम ही नहीं साडा ते पहचान की होएगी? एकदम पहचानिया जाता भी मैं फलाना सिंह हाँ। हुण एक क्लीन शेव है बच्चा, तो वो किवें उस ओहदी पहचान आएगी, ਇਹਦੀ कौम किहड़ी है? जे ਉਹਦੇ अपने नाम के नाल कुछ लाया ही नहीं, जे उसने अपने नाम के नाल कुछ लाया ही नहीं, ਸਿੰਘ लाया ही नहीं, ਸਿੰਘ उड़ा दिता, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत माड़ी गल हुई है। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कर लवे जो कुछ मर्जी प्राप्त, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशी नहीं मिलेगी, सच कहना। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਲੇਗਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश, नाम देखना ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, इतिहास पढ़ लियो। मैं पढ़िया नहीं वैसे किसी इतिहास ਵਿੱਚ भी गुरु गोबिंद सिंह जी के जिन्ने सिंह सी उन्होंने नाम वो निके निके जड़े सी वो नहीं, उत्थे दे बचित्र सिंह सी, बंदा सिंह बहादुर सी, उत्थे ते बड़े प्यारे प्यारे नाम सी। ये नाम सी, कोई छोटे नाम सी? बाबा जोरावर सिंह नूं की कहंदे सी, छोटा नाम है सी? जे किसी नूं पता होवे मैनूं फोन करके दस दिओ, है सी किसी दा नाम? ना 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 नहीं सन। ये पता नहीं कितों आ गई बीमारी जी। सो गुस्ताखी माफ, विषय वल परती है। महाराज जी गुरु अर्जन देव जी फरमान कर रहे हैं, रूप न रेख न रंग किश त्रै गुण ते प्राप्त। मैं परमात्मा नूं याद करना चाहना, मैं परमात्मा नूं मिलना चाहना, पर परमात्मा का रूप महाराज जी कहते है ही नहीं, उसकी जात भी नहीं है। मैनू चमार जाति वाला परमात्मा पसंद नहीं होएगा, क्योंकि मेरी जात होर है। मैनू हिंदू धर्म वाला परमात्मा या मुसलमान धर्म के नाल संबंधित परमात्मा या ईसाई धर्म के नाल संबंधित परमात्मा मैं कबूल नहीं करांगा, क्योंकि मेरी जात, मेरा धर्म होर है। मैनू ते मेरी जात वाला, मैनू ते मेरे धर्म वाला ही परमात्मा चाहिए। यही अज्ञानता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ महाराज जी ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। परमात्मा की जात नहीं है कोई ना कहे भी मेरी जात ये है तो मेरे परमात्मा की जात ये है। जिस दी जात है वो बंदा ही नहीं, मानस की जात सब है, एक ही पहचान वो। क्योंकि दुनिया दियां जातां जड़ियां ने इस नूं हंकारी बनाउंदियां ने। इस करके महाराज जी कहते सब तू वड्डी जात तेरी है, तू इंसान है, मनुखी जामे दे विच मनुख है। बस मानस की जात सब के पहचानो, एक तेरा पिता एक इसके हम वारग। इस करके हुण पहला एक मन अपने आप नूं, परमात्मा नूं एक मन, फिर तेनों रूप। एक मनण दे लई सिखां नूं नहीं कहा, सारी दुनिया नूं कहा। क्योंकि खत्री ब्राह्मण सूद वैस जिहड़े चारे सी ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ उपदेश चों वरना कुसां ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ है बई। शूद्रां वास्ते भी है, जिन्हां नूं शूद्र कह दिता, क्षत्री वास्ते भी है, ब्राह्मण वास्ते भी है, वैश्य वास्ते भी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ही है। एक ऑफिसर बच्चा बेटा बन गया, एक मास्टर बन गया, एक दिहाड़ी करदा, एक खेतां विच हल चलाउंदा। बई हुण ਜਿਹੜਾ ऑफिसर ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ नहीं ਸਮਝਦਾ। तू तो कख समझदा है ना, तेनों शायद कख तू कख भी ना समझदा हो, फिर की करेगा तू? जे किसी ने कुछ समझेगा वो भी तेनों समझेगा, तू किसी को सत्कार देगा तेनों भी सत्कार देगा। इसलिए महाराज जी कहते भी उस परमात्मा की जात नहीं, उसका रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, तो फिर मैं किनू देखा, फिर मैं किहदा ध्यान धरा अखां बंद करके? मैनू दस्या जाए गुरु पातशाह जी, मैनू आप जी दसो, मैं जदों तेरे शब्द दे नाल जुड़दा
मैं रब नूं मिलण लई जुड़दा, बस गल क्लीयर है। जद रब का कोई रूप नहीं, रब की कोई खास जगह नहीं, रब की कोई बॉडी नहीं, कोई देश नहीं, कोई आकार नहीं, तो फिर मैं स्वरूप किहड़ा अपने अगे लियावां तां जो मेरे अंदर श्रद्धा पैदा होवे। दसदे आ महाराज जी, कहते तेनों दसदे किहड़ा रूप अपने नेत्रां दे अगे अपने ध्यान दे विच लिआंदा जावे तां जो परमात्मा दे नाल साडा चित्त साडी सुरत जुड़ सके। देखो जीवन दे विच सानू रिश्तियां दे रूप दे विच कई मिले ने, माँ बाप के रूप में, भैन भरावां के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में। किसी भी रिश्तेदार का नाम लईए, कोई अपने मासड़ फुफड़ मामे का नाम लो, उसका चेहरा एकदम साडे सामने आएगा। ध्यान देना, बड़ी गहरी विचार है, गहराई के नाल सरवण करनी पएगी। कोई अपने बजुर्ग का नाम लवे, दादे का नाम ले, उसका चेहरा एकदम अखियां दे नेड़े आएगा। कोई अपने मामे चाचे का नाम लवे, उसका चेहरा एकदम अखियां दे मुहरे आएगा। जदों कोई परमात्मा का नाम लवे, परमात्मा का किहड़ा रूप साडियां अखियां दे मुहरे आएगा? एक क्वेश्चन है, छोटी गल नहीं है। जदों मैं अखां मीट के कहना वाहिगुरू, जदों कोई नेत्र बंद करके कहंदा है धोती बोधी वाला राम राम, जदों कोई मुसलमान कहंदा अल्लाह अल्लाह, ਉਹਦੇ अगे की आंदा है? क्योंकि पंक्ति बड़ी प्यारी चली है, ਉਹਦਾ रूप नहीं हैगा, ਉਹਦਾ रंग नहीं, ਉਹਦੀ जात भी नहीं, ਉਹਦਾ कोई धर्म भी नहीं, ਉਹਦੀ स्पैशल थां भी नहीं, तो फिर ਕਿਹੜਾ रूप ਉਹਦਾ बनाइए जी, अगे रखिए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ संपर्क पैदा हो जाए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ रूप लियाइए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम पैदा हो जाए। ਉਹਦਾ रूप बड़ा वड्डा है, वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मरतबा, ਉਹਦਾ रूप बहुत वड्डा है। महाराज जी कहते हुण तैनूं दसदे आ, जे तू जुड़ना चाहुंदा जुड़ जाएगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, तू जुड़ जाएगा रब दे नाल, तैनूं रब दिसना शुरू हो जाएगा। रब कित्थे रहिंदा है? इहो विश्व संसार तुम देखदे, इहो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। जो असी अखियां बंद करते हैं ना, साडा मन जिहड़ा ना उडारियां मारदा सजे खब्बे जांदा है ना, जिन्ना ब्रह्मंड है उहदे विच घूमेगा। चाहे कोई अमरीका पहुँच जाता किसी का मन, चाहे किसी रिश्तेदार को पहुँच जाता है, ये मन विच ये लै आए, ये विश्व संसार तुम देखदे, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। यो जग सच्चे की है, कोटड़ी सच्चे का विच वास, जां जो दिसै सो तेरा रूप, जां सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदे चानन सा मैं चानन होए। जे दुनिया दे विच मैनू कोई चंगा लग रहा ते ज़्यादा माड़ा लग रहा, मैनू परमात्मा नहीं दसेगा। मैनू दुनिया दे विच कुछ चंगा लग रहा है या बहुत चंगा लग रहा, कुछ चंगा नहीं लग रहा, बड़ी नफरत है मैनू इस चीज़ दे नाल, परे लै जाओ इस चीज़ नूं, उन्हें रब नहीं मिलेगा, उसकी सुरत नहीं जड़ेगी। संसार दे विच चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई आस्तिक है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई पुन्नी है, जो दिशे महाराज ने कहा भी जो दिशे सो तेरा रूप, सारियां नूं नेत्र बंद करके जिधर भी निगाह जाएगी, ये सारा मेरा परमेश्वर दा रूप है। इस सर्व व्यापक रूप दे विच परमेश्वर बह गया, वो जीव दे विच भी बह गया, निर्जीव दे विच भी बह गया, जड़ चेतन विच भी बह गया, सरगुण निर्गुण रूप विच होके वो सारे पासे पसर गया, बलहारी कुदरत वसिया। सगल बनस्पत मह बै संतर, सगल दूध में घीया। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो जिधर देखना शुरू करते हैं उतों ही प्रगट कर लेंदे ने। नामदेव जी कुत्ते वाल देखी जाते हैं, कुकर वाल देखी जाते हैं, रोटी खाते नूं चौंके दे विच,
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਪਿਆ ਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਰ ਜੇਰ ਸਿਦ ਕਿੰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਬਹਿਣ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ, ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਢੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏਗਾ, ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ।
इसलिए सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सारा ही संसार परमात्मा का रूप है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई ईसाई है, बोधी है, जानी है, पारसी है, कोई भी दुनिया का बंदा जिहड़ा है वो परमात्मा का रूप है। इस करके किसी नाल भी कोई जैलसी या नफरत ना करे, किसी भी धर्म के बंदे नाल जैलसी ना करे, उसके धर्म नूं नीवा दिखाउण दी कोशिश ना करे, उन्होंने इन्ना क अपने शब्दों विचारों द्वारा इंप्रैस कर दे, वो कह दे वाह भी वाह एडी वड्डी तेरी सोच वड्डी। किसी नूं नीवा दिखाउण करके बंदा वड्डा नहीं हुंदा, किसी दी उपमा वड्याई करके बंदा वड्डा हुंदा। तुसीं देख लेना, किसी की वड्याई करके देख लेना, वो तुहानूं वड्डा जान के मिलेगा। किसी नूं जलील करके देख लेना, उहदे अंदर तुहाडे प्रति सत्कार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वड्डा कहण दे नाल वड्डा बनिया जांदा, सत्कार देण दे नाल सत्कार मिलदा है। इसलिए पंक्ति की रमता हुई है श्लोक, रूप न रेख न रंग किश, त्रह गुण ते प्रभिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। स्वरूप नहीं उसका, जात नहीं उसकी, कोई स्वरूप नहीं उसका, कोई जात देश नहीं, कोई खास जगह नहीं उसकी, वो सारिया जगह दे विच सुभाईमान है। इस करके वो सैभंग है ते उन्होंने ही समझाउंदी है जिन्हों वो समझाउंदा है, तो जो समझना चाहता है उन्होंने समझा देंदा है, जिहड़ा नहीं समझना चाहता वो वार वार इस संसार दे विच आउंदा जांदा है, आए जाए दुख पाइंदा। इस करके समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। इसनूं समझण दे लई बहुत वड्डा जिगरा, बहुत वड्डा दिमाग, सुरत बुद्धि चित ये चाहिए है। इस तो बिना परमात्मा दी या परमात्मा की बख्शिश प्राप्त नहीं होनी। अष्टपदी अबनासी प्रभ मन महराग, अपने मन विच अकाल पुरख नूं परो के रख, महाराज जी फरमान करते हैं। अबनासी प्रभ मन महराग, मानव की तू प्रीत त्याग। इस संसार दे विच सानू एक दूजे ते बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत चंगी गल है, भरोसा होना चाहिए, पर इन्ना ज़्यादा भरोसा ना होवे कि धोखा मिल जाए। परमात्मा ते भरोसा ब्लाइंड फेथ एक कहंदे ने, वो केवल ओनली ऑन गॉड, केवल परमात्मा ते ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। दुनिया दे किसी बंदे ते चाहे कोई भी होवे, गुस्ताखी माफ, चाहे कोई भी हो, अखा मीच के नहीं। सानू जागृत किया महाराज जी ने, क्योंकि मन तो खुद दे बंदे दा अपने दा नहीं पता कदों डोल जाए कदों हिल जाए, तो 100% भरोसा ना करी। कोई गुंजाइश जरूर महाराज जी कहते रख लई। अबनासी प्रभ मन में राह, मानो कि तू प्रीत त्याग। सो इस करके संसार दे विच मानुख की टेक बिरथी सब जान। संसार दे बंदे जरूर साडे हमदर्द ने, इहदे विच कोई शक नहीं, पर कदों कोई बदल जाए इहदा भी पता नहीं। इस करके मनुख तू महाराज जी कहंदे तू अपना जिहड़ा है भरोसा आस जिहड़ी है वो छड्ड के परमात्मा दे नाल ला, तिस ते परे नाही किश कोई, उस तू बाहर, उसकी कृपा तू बाहर कोई जीव कोई जंतु नहीं है। सर्व निरंतर एको सोए, सब जीवां दे विच एक ही अकाल पुरख दी व्यापक रूप दे विच जोत जड़ी है वो चल रही है। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। आपे ही सबना दे दिलां दे अंदर दी जानने वाला वो आप ही आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। और बहुत ही गहर गंभीर मतलब डूंगा, बहुत ही सियाना है। कौन? परमात्मा। परमात्मा बहुत ही सियाना है। गहर गंभीर गहीर सुजाना, बहुत गंभीर बहुत डूंगा ते बहुत ज़्यादा सुजान मतलब सियाना है। कौन? परमात्मा। इस करके ऐसे परमात्मा दे नाल महाराज जी कहते तू जुड़, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद
हे परमात्मा, हे प्रभु सबना दे मालक परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद, दया दे खजाने दया दे घर दे विच आके बख्शिशां करन वाले, साध तेरे की चरनी पाओ। मैं तेरे प्यारियां दी जां आप जी दी संगत करां, नानक कै मन एहो अन राओ। मेरे मन विच यही तांग है, मेरे मन विच यही इच्छा है, मैं जपन वालियां कोल जावां, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंध तिना के पास धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। बच्चे स्कूल जाते ने, उन्होंने कुट भी पैंदी है टीचर साहबान कोल, उन्होंने झिड़कां भी पैंदियां ने, उन्होंने खड़े भी किया जाता है, उन्होंने सजा भी दी जाती है। पर टीचर जिहड़ा बच्चे का जीवन इदां दा बना दिंदा, बच्चे अफसर बन जाते हैं। बच्चे दुनिया के कोने कोने में जाके वड्डे वड्डे अहुदियां ते लग जाते हैं। जो टीचर नूं याद करते हैं या टीचर मिलता उहदे चरणों में मत्था टेकते हैं भी मेरे टीचर ने मैनूं झिड़किया सी, मेरे टीचर ने मैनूं कुटिया भी सी, पर मैनूं देखो कित्थे पहुँचा दिता। महाराज जी कहते जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। मैं भी सुनदा पिया गुरु तो, तुसीं भी सुनदे, गुरु का गुस्सा नहीं करीदा। जो गुरमत विचारां असीं सरवण कीतियां ने, ये गुरु दियां हन, गुरु दी बाणी दियां हन। जे असंख चोर हराम खोर असंख मरकर जाए जोर कहणगे, वो असीं सारे उहदे विच आउंदे आ। जे असीं इस तरह दे होवांगे ते ये साडे ते ढुकेगी, जे नहीं इस तरह दे होवांगे ते साडे ते नहीं गल ढुकेगी। इस करके गुरु दी कही होई कोई भी गल दा गुस्सा नहीं करीदा, मां बाप दी कोई भी गल दा गुस्सा नहीं करीदा। जे गल भी कढ़ देन कोई गल नहीं, जे चपेड़ भी मार देन असीं उहदे बराबर असीं खड़े होना, कोई गल नहीं। मार देन चपेड़, कढ़ देन गालां, कोई गल नहीं। फिर की बाप ही है कढ़ दे, फिर की चुप कर जा, मां ही कढ़ी जाण दे, फिर की उहदा हक है, उहदा हक है। उहदी गल दे विच भी प्यार है, खिच है, भला है। वो गुआंढियां दे न्याणे नूं नहीं गाल कढ़ सकदी। एक मां एक बाप गुआंढियां दे बच्चे नूं कदी चपेड़ मारदा है, अपने नूं मारदा है, अपने नूं समझ गए भी ये मेरा है, इनू मैं अगे वधदा देखना चाहुंदा, इनू मैं सुधारना चाहुंदा। इस करके जे गुरु जी सानू कोई चोट लाउंदे ने ते समझना मेरे पिता दा हक है, मेरे सतगुर दा हक है, ते मैं उहदा बच्चा हाँ, तो मेरा भला ही होएगा। सानू अज नहीं पता, जिस दिन सोझी आ जाएगी उस दिन पता लग जाएगा कि जो भी मेरे गुरु ने मैनू किया वो मेरे भले लिए किया सी। ये सी अज दे लड़ीवार शब्द की विचार जो महाराज जी ने बड़ी कृपा करके सो सेवा लई है। सो जो देश प्रदेश सरवण कर रहे हो गुरु की गोद विच बैठ के, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सो गुरु के शब्द नूं बड़े प्रेम दे नाल सरवण करया करो, बड़ी बख्शिश होंदी है, जीवन का आनंद आ जाता है। सो महाराज जी सब की हाज़री प्रवान करे, भुलां चूकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।